Hello students, welcome in your digital teaching channel. Today we will see the standard 5th problem set 18. How we convert the like fraction. Means unlike fractions are there and how they convert into the like fraction. First we see in our last video what is the like fraction, unlike fraction. It may be proper, improper and mixed type. First we revise it. What is the proper fraction? When denominator is greater, denominator is the greater than the numerator, that time it is called the proper fraction. For example, 2 upon 3. And what is improper fraction? Improper fraction means when numerator is greater than denominator, it is called the improper. Means this is not a proper thing, so it is called the improper fraction. And when we use the integer with a fraction, 2 1 upon 3, this type of thing is there, this type of example is there, this is called the mixed fraction. And what is the like and unlike fraction? Suppose when we taking the example 1 upon 2 and second fraction is the 3 upon 4, when their denominator is the different, when denominator is different, this is called the unlike fraction. And like fraction means denominators are the same, 1 upon 2, second is also 3 upon 2, means their denominator is the same. This is called the like fraction. But in some cases, in the fraction, some are the like fraction and some are the 3 upon 4. First, 3 upon 4 and 5 upon 8. See student, here in a first fraction, denominator is the 4 and in second fraction, denominator is the 8. We saw this one. What is the like fraction? Like fraction means denominators are the same. Okay? Denominator, any value. It may be 1, 2, 3, 4, any up to 1000. Infinite number is also there. But both the denominators are the same. Here, what is the case? Here, denominator is different. So, this is the unlike factor. Unlike fraction. So, how to convert this unlike fraction into the like fraction? There is a two rules are there. First rule is the first, if the any denominator means जो भी fraction है वो fraction के कौन सा भी एक denominator if present in second डिनोमीटर्स टेबल, सेकेंड डिनोमीटर के टेबल में अगर वो प्रेजेंट रहता है तो दिस इज द फर्स्ट मेथड. और सेकेंड मेथड, इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनी टेबल, इफ दे मीन्स बोथ डिनोमीटर इज नॉट प्रेजेंट इन एनी टेबल, मीन्स उनके जो एक दूसरे के टेबल में अगर प्रेजेंट नहीं होते तो उस टाइम हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. फर्स्ट यू रिमेंबर दिस रूल. फर्स्ट रूल क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट हमें टेबल में वो टेबल में आते कि दोनों में से एक नंबर जो है वो सेकेंड के टेबल में आता है क्या, या तो सेकेंड नंबर उस टेबल में आता है क्या, वो देखना है. या तो अगर वो रूल फॉलो नहीं करता तो दूसरा रूल क्या है कि अगर दोनों भी किसी के टेबल में एक दूसरे के टेबल में अगर नहीं आते तो वी कैन टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल. तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि टेबल में आने चाहिए. यहाँ पे देखो, दिस इज द एग्जाम्पल 3 upon 4 and 5 upon 8. Here 8 is not coming in the 4th table, but in 4th table 8 is present. 4 to the 8. When this type of thing is there, तो हमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दूसरे नंबर में मीन्स दूसरे डिनोमिनेटर में अगर आता है
उसका जो डिनोमिनेटर है वो टेबल में अगर आता है तो वही फ्रैक्शन को हमें लेना है, सेकेंड फ्रैक्शन को एज इट इज़ हमें रखना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करें. फर्स्ट वी विल टेक द 3/4. वाई? क्योंकि दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन एंड अगेन वन थिंग इज दैट 4 is 4th table containing the 8. So here equal to 3/4. First we multiply 4 by the 2. 4 to the 8. Why? क्योंकि यहाँ पे 8 है इसलिए हम यहाँ पे भी 8 करेंगे, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. लाइक मीन्स सेम डिनोमिनेटर में उसको कन्वर्ट करना है. 4 to the 8. और अब फ्रैक्शन का रूल है कि अगर हम डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर से दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं. हियर 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया. व्हाट इज द आंसर? 3 to the 6 एंड 4 to the 8. ओके. और हमारा सेकेंड जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन में जो टेबल नहीं आता, जो नंबर दूसरे नंबर में नहीं आता, उसको एज इट इज़ रखना है. यहाँ पे हम सिर्फ चेंजेस किस में किए? 6/8 में किए, 5/8 एज इट इज. ये हो गए लाइक फ्रैक्शन. सी हियर बोथ नंबर्स आर द सेम. Second example, we will take the second example. In second example, 3/5 and 3/7. Okay, here 3/5 and 3/7. Here 5 in 5's table 7 is not present. 5 ones are 5, 5 twos are 10. Means 7 is not present. Again we will check the in 7 table. 7 ones are 7, 7 twos are 14. Means 7 के टेबल में 5 भी नहीं आता. तो हमें यहाँ पे सेकेंड जो रूल है वो रूल क्या है हमारा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या? फर्स्ट वी राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन 3/5 एज इट इज़ राइटिंग करना है, और इस नंबर को हमें ये जो सेकेंड नंबर का डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों को भी, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को. मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा. यहाँ पे कॉमा रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशन कौन सा भी ऑपरेशन नहीं करना है, इसलिए वी विल टेक हियर कॉमा. देन 3/7 वी विल राइट हियर. और ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है, सेकेंड फ्रैक्शन को हम फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में. हियर 3 7s are 21, 5 7s are 35. Okay, 3 5s are 15, 7 5s are 35. See here denominator is the same, so it is the like fraction. In this way we can solve the like fraction. Means you remember this one. In some cases one rule is applied and in some cases second rule is applied. This is only two rule. And when like fractions are there, जब लाइक फ्रैक्शन रहते हैं तो उसके ऊपर हमें ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करनी होती है इट इज़ वेरी इजी. जब तक फ्रैक्शन में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि फ्रैक्शन के जो भी ऑपरेशन रहते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो भी ऑपरेशन रहते हैं, जब तक हम लाइक फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट, उसको लाइक फ्रैक्शन में जब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते तब तक वो जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल नॉट सॉल्व. Here again we will take the next example. Next example will be, I will take the third one. Okay, third one example 4/5 and second fraction is the 3/10. See here, first always see the denominator. 5 के टेबल में 10 आता है कि देखो 5 1s are 5, 5 2s are 10. लेकिन 10 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए हमें कौन से फ्रैक्शन को कंसीडर करना है? ओनली फर्स्ट फ्रैक्शन जो दूसरे के टेबल में आता है. 4/5 मल्टीप्लाई, 1 minute, दिस इज नॉट अ स्टेप, इक्वल टू 4/5 एज इट इज राइटिंग करो, मल्टीप्लाई 5 2s are 10. वाई? क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है,
इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। और हमारा जो फ्रैक्शन है, हाँ, फर्स्ट फ्रैक्शन 8/10 हो गया और सेकेंड फ्रैक्शन एज इट इज़ राइटिंग करना है क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। 3/10। इन दिस वे वी कन्वर्ट द like unlike fraction into the like fraction. There is a 2 rules. फर्स्ट रूल जो है वो उसके टेबल में आते हैं कि दोनों में से एक नंबर उसके टेबल में आता है कि वो देखना है। और सेकेंड रूल जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगेन विल बी 6 1 example I will take here. 5/6 and 4/5. Here 6 table is not containing 5 or 5 table is not containing the 6. So we use the cross multiplication. First write the first fraction 5/6. Then second denominator हमारा रूल क्या है कि second denominator first को हम multiply करते। ओके, यहाँ पे कॉमा 4/5 then multiply here सेकेंड फ्रैक्शन को हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, कॉमा 4 6 ज़ा 24 और 5 6 ज़ा 30. This is the like fraction. In this way we can convert the unlike fraction into the like fraction. Students, you should do the practice of all exercise. जब मैंने कितने भी एक्सप्लेन किया लेकिन आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं की मैथ्स की तो आप लोगों को मैथ्स नहीं आएगा। हम मैथ्स में परफेक्ट कब होते हैं? प्रैक्टिस मेक्स मैन perfect. We will stop here. And student, one thing remember, जो भी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स ले रही हूँ। तो आपका काम है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है। सब तीनों भी पर्सनल वगैरह जो भी बेल आइकॉन है वो भी प्रेस करो, मीन्स आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू। वी विल स्टॉप हियर।